नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, डीसी गोविंद रेड्डी ने कहा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर में आयोजित जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह ने जेडीएस नेताओं के साथ बातचीत की। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि कर्नाटक में 5 अप्रैल तक लू का अलर्ट। लोगों को भड़का रही कांग्रेस, रुद्रपुर में बोले पीएम मोदी। कहा 10 साल का विकास सिर्फ ट्रेलर है। आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ईडी ने नहीं किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि आज प्रौद्योगिकी से जुड़े अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और पुलिस प्रणाली में प्रौद्योगिकी प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने मंगलवार को बीदर के जिला पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस झंडा दिवस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में बात की। आज बैंक खातों को हैक करके पैसे चुराने का अपराध करने वाले हैकरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस अपराध विभाग को मजबूत करने का आह्वान किया है। किसी भी देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां की पुलिस व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य पुलिस सुरक्षा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है और उनका सम्मान करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सेवानिवृत्त पीएसआई दयानंद ने कहा कि पुलिस झंडा दिवस पर सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे। एसपी चन्नाबसवाना ने कहा कि वह सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए भीष्म नामक कार्यालय स्थापित करने के लिए सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से उन्हें बधाई दी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला उप वन संरक्षक वनथी एमएम और वायुसेना स्टेशन के ग्रुप कैप्टन रितेश शर्मा, अतिरिक्त एसपी महेश मेघनावर, एएसपी चंद्रकांत पुजारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इसी अवसर पर पुलिस टिकट जारी किए गए। 6 अलग अलग पुलिस टुकड़ियों ने परेड की और सलामी दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. 31 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಗೌರವ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿ 31 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ PSI ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ, ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಾವುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮವರೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು. ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಪರೇಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕವಾಯತು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈವನ್ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ದು ಪರೇಡ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪರೇಡ್ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪರೇಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರೇಡನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳನ್ನಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಂತರ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದರೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. SSLC PU ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन को लेकर बीदर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों के जेडीएस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार की शाम पूर्व मंत्री बंडप्पा के बीदर शहर के आवास परिसर में हुई. बीदर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार भगवंत खुबा, जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री है, बंडप्पा खाशमपुर, जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर और कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और गठबंधन के मुद्दे पर लंबी चर्चा की. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जेडीएस और राज्य भाजपा नेताओं के साथ एक संयुक्त बैठक की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगियों का अभियान कर्नाटक में गति पकड़ने वाला है. बैठक को भाजपा और जेडीएस द्वारा जमीन पर बेहतर समन्वय बनाने और संघर्ष के संभावित मुद्दों को दूर करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनकी पार्टी की कोर कमेटी के कुछ सदस्य, जिनमें स्कीम प्रमुख जीटी देवेगौड़ा, अनुभवी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और कर्नाटक में चुनाव के प्रभारी महासचिव राधा मोहन शामिल हैं. दास अग्रवाल सहित दोनों दलों ने कई अन्य नेता बैठक का हिस्सा थे. भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार 5 अप्रैल तक कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और लू चलने की भविष्यवाणी की है. 1 अप्रैल को जारी बुलेटिन में कहा गया है कि शुक्रवार तक भी शुष्क मौसम बने रहने की उम्मीद है. हीट वेव की चेतावनी जारी करते हुए आईएमडी ने कहा कि कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान जलवायु संबंधी मूल्यों के 95% से अधिक हो रहा है. यह प्रवृत्ति जारी रहने और राज्य के अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित होने की उम्मीद है. तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में ताप सूचकांक 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. बुलेटिन में बेलगावी, बीदर, गदग, धारवाड़, हावेरी और रायचूर जिलों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु ग्रामीण, दावणगेरे, हसन में अलग अलग स्थानों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. 5 अप्रैल तक कोलार, मंड्या और मैसूर जिले में बागलकोट में राज्य में सबसे अधिक तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बेंगलुरु शहर के लिए आईएमडी का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. धारवाड़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उम्मीदवारी का डिंगलेश्वर मठ के संत द्वारा विरोध तेज होने के साथ भाजपा नेता अब दावा कर रहे हैं कि संत का कदम कांग्रेस से प्रेरित है. पिछले कुछ दिनों से संत का यह दावा करते हुए जोशी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने अन्य समुदायों की उपेक्षा की है. कुछ संतों ने डिंगलेश्वर संत के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया. बीजेपी नेताओं का दावा है कि पूरा लिंगायत समुदाय जोशी के साथ है और यह अचानक विरोध इस बात का सबूत है कि यह कांग्रेस नेताओं की करतूत है, क्योंकि पार्टी को चुनाव हारने का डर है. बीजेपी नेता मोहन राम दुर्ग ने आरोप लगाया कि जोशी को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक कुछ घटनाक्रम हुआ. लिंगायत जन नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी संत से हंगामा न करने को कहा. अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर.
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रुद्रपुर में उत्तराखंड के विकास और राज्य को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नियत सही तो नतीजे भी सही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का प्रेम और अपनत्व जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाकर सबसे आगे लेकर जाना है। इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। तब तक न रुकना है न थकना है। 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60 से 65 सालों में भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है, अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में मचे सियासी हड़कंप के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर यह भी है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है, यानी ईडी की सहमति के बाद ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी। संजय सिंह को बीते 4 साल अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले अदालत से कहा था कि संजय सिंह दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब कंपनी समूहों से रिश्वत प्राप्त करने की साजिश का हिस्सा थे। दिल्ली की आबकारी नीति अगस्त 2022 में निरस्त कर दी गई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई को कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया था। अप्रैल शुरू होते ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दक्षिण भारत के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 4 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश में लू चलने की भविष्यवाणी की है। रायलसीमा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गंगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कर्नूल में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री तो गुलबर्गा में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र में मालेगांव, सोलापुर में 41 से 42 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 41.5 डिग्री तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 41.7 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद उनकी मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बयान सामने आया है। मेनका ने कहा है कि वह बहुत खुश है क्योंकि वह बीजेपी में है। इसके लिए मेनका ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद भी दिया। वरुण गांधी अब क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में मेनका ने कहा कि ये तो उनसे पूछे कि वह क्या करना चाहते हैं। हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे, अभी समय है। मेनका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में हूं। मुझे टिकट देने के लिए मैं अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा को धन्यवाद देती हूं। टिकट की घोषणा बहुत देर से की गई, इसीलिए दुविधा थी कि मुझे कहां से लड़ना चाहिए, पीलीभीत से या सुल्तानपुर। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अब जो फैसला किया है इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं सुल्तानपुर वापस आई, क्योंकि इस जगह का एक इतिहास है कि सुल्तानपुर में कोई भी सांसद दोबारा सत्ता में नहीं आया। टिकट मिलने के बाद यह उनका सुल्तानपुर का पहला दौरा था। मेनका जिले के अपने 10 दिवसीय दौरे पर वह पूरे लोकसभा क्षेत्र के 101 गांवों का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने आम आदमी पार्टी के कई विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जानकारी के मुताबिक करीब 15 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं, जिनमें संजीव झा, दिलीप पांडे, प्रमिला टोकस, राजकुमारी ढिल्लो, राखी बिड़ला आदि शामिल हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
जिसमें उन्होंने कई बड़े दावे किए। इस मुलाकात के दौरान दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहे। इनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत शामिल हैं। इसके अलावा सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जानकारी दे दें, आप विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा न दे, जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाए। सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात के बाद कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, कई विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलना चाह रहे थे। परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पर आए। सभी विधायकों ने अपनी बात रखी और कहा कि भाभी बीजेपी बहुत प्रेशर बनाएगी कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे। बीजेपी की यह पॉलिसी रही है कि एक ट्रैप बिछाया जाएगा, भाभी ही पार्टी के ओर से सीएम के पास संदेश ले जा सकती हैं और वहां के संदेश यहां ला सकती हैं। सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले में ईरान के 2 जनरल और 5 अधिकारी मारे गए। ईरानी अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब इजरायल की तरफ से ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इजरायल की तरफ से किए गए इस हमले के बाद माना जा रहा है कि अब मध्य पूर्व में टकराव और बढ़ेगा। ईरान और उससे सहयोगी इजरायल को निशाना बना सकते हैं। इस बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी इजरायल की और लंबी दूरी की मिसाइल दाग रहे हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि ईरान गाजा और लिबनान में इजरायल से लड़ने वाले आतंकी समूहों का समर्थन करता है। गाजा में करीब 6 महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद से लिबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायल के बीच संघर्ष बढ़ा है। गाजा पर शासन करने वाले हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। हमास को भी ईरान का समर्थन हासिल है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के जल क्षेत्र की ओर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से परीक्षण को लेकर जानकारी दी गई है। उत्तर कोरिया की ओर से किए गए मिसाइली परीक्षण के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया हमेशा से उत्तर कोरिया की इस तरह की हरकतों का विरोध करता रहा है। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया उकसाने के लिए इस तरह के मिसाइल परीक्षण कर रहा है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक क्षेत्र से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन फिलहाल यह नहीं पता कि मिसाइल ने कितनी दूरी तय की है। उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, डीसी गोविंद रेड्डी ने कहा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर में आयोजित जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह ने जेडीएस नेताओं के साथ बातचीत की। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि कर्नाटक में 5 अप्रैल तक लू का अलर्ट। लोगों को भड़का रही कांग्रेस, रुद्रपुर में बोले पीएम मोदी। कहा 10 साल का विकास सिर्फ ट्रेलर है। आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, ईडी ने नहीं किया विरोध। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।